वैक्सीन बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, लेकिन बहुत ही कॉस्टली है, इसका लंबा प्रोसीजर है बहुत। इसको अभी जैसे टर्की में पोजीशंस निकली हैं कि हाउ वैक्सीन पे काम करने के लिए, वैक्सीन डिजाइन वेरी टफ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो मॉडर्न टूल्स आ गए तो दे आर वेरी टफ। अभी आज भी इंडिया में दे आर प्रिपेयरिंग वैक्सीन फ्रॉम वेरी कन्वेंशनल टेक्निक, है ना। तो एक मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज द पर्पस। मेरे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे। इम्यून सिस्टम, सब यूनिट प्रिपेयर्ड वैक्सीन, अटेन्यूएटेड वैक्सीन, वेक्टर वैक्सीन, बहुत सारे वैक्सीन मैंने इंक्लूड नहीं किया। बैक्टीरियल एंटीजन डिलीवरी सिस्टम, वायरल वैक्सीन, है ना, वायरल वैक्सीन, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सो वैक्सीनेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन इज अ काइंड ऑफ प्रोसीजर to increase the immunity of a system. So how they are increasing the immunity of the system? By increasing the concentration of antibody or effector T cells which are reactive against those infections, and they are very helpful for immediate production. For example, who was the discoverer of this vaccine? He was the Jenner. 1975 में he discovered this vaccine. So accidentally he discovered the vaccine. He was a doctor, and he observed that the pox disease was killing everyone except milkman, and especially those milkmen whose cow were infected with the cowpox. Okay. तो काउ पॉक्स जिनको हुआ था, वो मिल्कमैन को वो पॉक्स होती नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक लड़का था, वो मर रहा था, तो इनको लगा कि मर ही जाएगा, फिर क्या फायदा, चलो इसका ब्लड निकाल के इन्होंने, ठीक है ना, और उसको इंजेक्ट कर दिया सीधे। तो इंजेक्ट किया तो वो सेव हो गया, बच गया। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया, जहां पे वैक्सीन का मतलब होता था काऊ या सीरम, है ना, बिकॉज काऊ से इंस्पायर्ड थे, तो वैक का मीन्स होता है काऊ, राइट, एंड देन ही वाज इंस्पायर्ड बाय द काऊ। और चूंकि सीरम इंजेक्ट किया था, तो समटाइम ऑल दिस इम्यूनाइजेशन प्रोसीजर इज लिंक्ड विद द काऊ पॉक्स एंड सीरम, ठीक है। इम्यूनाइजेशन प्रोसीजर फॉर वैक्सीनेशन एंड द इम्यूनाइजेशन for vaccine or serum is historical reference. So what is a vaccine? Vaccine is a biological preparation that improves immunity to a particular disease. And during vaccination, a vaccine is injected or given orally. So there are various procedures to prepare all this kind of vaccine, and the purpose of introducing the vaccine inside the host is to produce similar antibody that can produced by the person, right? So there are two types of antibodies. One is prepared, prepared antibodies, preformed antibodies. Preformed. When you are giving the preformed antibodies, so this is called as the passive. And when you are injecting a vaccine, that inducing antibody formation. Antibody formation. This is called as active, because they are injecting the serum, a kind of memory cells. So these memory cells are going to be activated, right? And that's why they are producing a lot of antibodies, because they are going to be converted into the effector cells, and the disease is prevented. So generally, to produce a vaccine, the pathogen is grown in culture, purified, and either inactivated or attenuated. So Edward Jenner used the cowpox to vaccinate individual against smallpox when 1976.
So this is the mechanism of vaccine, how they are going to act. This is mechanism of active vaccination. So foreign microbe with antigen, macrophage going to ingest, digest that antigen, processing them, present to T helper cell, and then T helper cell is going to start production of various effector cells, in which there is a killer T cells, suppressor T cells that inhibit T and B cells, helper T cells stimulate T and B cells, memory T cells that are going to remember which antigen is going to encounter in the futures. So this is the mechanism. So traditional vaccine consists of either kill. मेरी आवाज आ रही प्रॉपर कि धीमे आ रही है? जी सर, यस सर, आ रहा है आवाज। धीमे धीमे आ रहा है? चलो प्रॉपर आ रहा है सर। बस ठीक है। Also traditional vaccine two type may be killed or live. लाइव में मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन लाइव में एक प्रॉब्लम है कि दे आर गोइंग टू रिवर्ट बैक। इसीलिए कभी भी कोरोना के केस में ये रिस्क ले ही नहीं रहा है कोई भी, राइट। और वो जो हमने वीडियो डाला था कि कोरोना इज ए बैक्टीरिया, दैट इज नॉट ट्रू। है वायरस वो, बट वो सिम्टम बैक्टीरिया जैसा दे रहा है, जैसे कि उसमें से 25% ट्रू है। उन्होंने लास्ट वाला जो पोर्शन डाला वो साइंटिफिक है, कि पहले का साइंटिफिक नहीं है। सो वायरसेस तो है, कोविड-19 प्रूफ हो चुका है, और उनके जो सिम्टम आ रहे हैं क्लॉटिंग के, उनको ठीक करने के लिए वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है दैट इज गुड। और वो हम उठा के डेटा भी देख रहे थे इटली का ग्राफ ऐसे हुआ है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन इंडिया बराबर जा करके और सडनली ऐसे आया फास्ट। ठीक है, अभी इंडिया ग्राफ ऐसे चल रहा है हाथी घोड़ा पालकी हो रहा है जब तक वो घोड़ा नहीं बन जाएगा पूरा देश, तब तक जो है। और इटली का ग्राफ ऐसे हो रहा है। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, कई कंट्री आ रहा है, न्यूजीलैंड आ गया, मॉस्को ने भी क्लियर कर दिया, काफी कंट्री क्लियर हो रहे हैं। अमेरिका और इंडिया को छोड़ के, इंडिया यूके ये लोग काफी इफेक्टेड है। साउथ अफ्रीका में नहीं फैला है अभी तक, वहां नहीं फैला है। जो घूमते रहते हैं ना इंडिया में सारे वर्ल्ड के लोग आते रहते हैं, तो चाइना को इसलिए। सो हमने सोचा कि क्लियर कर दें, क्योंकि वीडियोस में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि अनडाइजेस्टेबल है। सो किल्ड वैक्सीन इज वेरी सेफ। व्हाई? बिकॉज यू आर killing them, not actually killing them, rather than you are removing either virulent portion or destroying that virulent portion with the chemicals, heat or antibiotics. Okay, antibiotics. So some vaccine contain live attenuated microorganisms. Many of these are live viruses. लाइव वायरसेस वो कल्टीवेट करते हैं, जैसे जो हम लोगों ने बनाया था लैब में, वो लाइव वायरसेस को ग्रो कराया था। इसमें ग्रो कराया था रैबिट के हेड में। तो जैपनीज इंसेफेलाइटिस का वो मेरा गोल्डन पीरियड था बाकी गोल्डन पीरियड आया ही नहीं इंडिया में इतनी पॉलिटिक्स, भगवान, हर जगह आदमी नहीं कुत्ते बैठे रहते हैं। मैंने साइंटिफिक कम्युनिटी में तो बहुत ही ट्रू है, साइंटिफिक कम्युनिटी की हर कम्युनिटी मुझे लगता होता ही होगा, बट आई हैव फेस्ड पर्सनली दिस काइंड ऑफ डॉनशिप इन दिस एरिया। ज्यादातर पीएचडी में उन्हें भी लेते हैं, ज्यादातर ड्रामेबाजी होती है टॉप इंस्टीट्यूट में, जिनकी लिंक उनको होते हैं, कुछ अच्छे बच्चों को भी ले लेते हैं। So attenuated vaccine, these are live viruses that have been cultivated in the condition that disable their virulent property. Virulent property disable करने का एक तरीका होता है कि grow them for many generations, generation 1, generation 2, generation 3, and in every generation. जैसे मैं एक दिन बोल नहीं रहा था कि अभी जो इंडिया में स्ट्रेन है काफी वीकर है ना, लोगों की मरने वालों की संख्या काफी कम है। क्यों कम है बता सकते हो?
ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन डिजीज कॉजिंग एजेंट एटेन्यूएशन तक उसको ग्रो कराते हैं कई जनरेशन में, उसी केमिकल्स में कई जनरेशन तक ग्रो कराएंगे, एंड देन यू कैन प्यूरिफाई देम, एंड देन यू कैन after purification you can check them for their virulent property. If they are not having virulent property, now you can pack them. Just simply you have to pack them in the glycerol so that they cannot dry. They should not dry. Dry हो जाएंगे तो they will change their 3D structural property. Inactivated vaccine, disease causing agent, and thermal or chemical agent treatment, inactivation, purification again. Purification बाद testing करते हैं, and then if the testing is good, then this formulated. Recombinant vaccine is very important because सर वो लाइव वाले में, लाइव वैक्सीन में हम इसके वायरुलेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं। हाँ, या तो मैकेनिकली डिस्ट्रॉय कर देंगे, या तो उनको कई जनरेशन में ग्रो करवाते हैं, है ना। तो जनरेशन में ग्रो करवाने से क्या होता है कि देयर वायरुलेंट प्रॉपर्टी बिकम वेरी वीक। तब तक ग्रो कराते हैं जब तक कि उनका बिल्कुल खत्म नहीं होता। पोलियो के केस में नहीं देखा था, पोलियो के केस में लोगों ने कैसे बनाया था, पोलियो का टीका जैसे बच्चे को लगता है 1 महीने तक उसको बुखार आता रहता है, तो उसकी वायरुलेंट प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि 10% है, बिल्कुल इनएक्टिव अगर हो गया होता तो वो फिर सिम्टम नहीं देता, सिम्टम दे रहा है, एक्चुअल वायरस का सिम्टम दे रहा है। हम लोगों को तो लगा है ना पता अभी आज भी दाग है जहां पे लगा है ठीक है ना। तो पूरा इंडिया तो वैक्सीनेशन से प्रोटेक्टेड है। पहले ये पॉक्स का, एंड देन चिकन पॉक्स का तो लगा, फिर हम लोगों ने हेपेटाइटिस फैला हुआ था हमारे हॉस्टल में, बहुत तेजी से मर रहे थे बच्चे फूड पॉइजनिंग से, तो वो लगवाया। देन बचपन में तो 3-4 लगते ही है। पोलियो का नया ड्रामा शुरू किया तो सारे बच्चे वही, मतलब बच्चे पैदा होते ही 5 इयर्स की एज में 7-8 वैक्सीन तो लगवाई देते हैं, ठीक है ना। और अभी जो वैक्सीन लगा था, कौन सा लगाया था, 4000 का लगाया था एक वैक्सीन, 4-5 का बच्चों को। हाँ, उसका जॉन्डिस मतलब डायरिया का, वायरल रिलेटेड जो डायरिया है, तो बहुत बढ़िया मार्केट है इसका, है ना। जो लोग लगे हैं, देखो ये तमाम तरह की इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या करते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड में डाल देते हैं इसको, फॉर्मल्डिहाइड में, ठीक, मोस्टली फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं, या फिर थर्मल एक्सपोजर कर देते हैं, टेम्परेचर डाल देते हैं, सब यूनिट उनकी इनएक्टिव हो जाती है, तो टारगेटेड थर्मल एक्सपोजर करते हैं, so that their virulent property, because target तो वही है ना, virulent property को खत्म करना, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, थर्मल प्रॉपर्टी में, जब थर्मल में मतलब अगर आप किसी 25 में जो ग्रो कर रहे हैं उनको आप 75 में ग्रो करा दोगे, 95 में ग्रो करा दोगे, तो वो टोटली किल हो जाएंगे, है ना, मतलब टोटली इनएक्टिवेटेड इसे बॉड दिया गया है। यहाँ पे लाइव इसलिए दिया गया बिकॉज देयर 3D प्रॉपर्टी रिमेन्स देयर, है ना, 3D properties remain there. So that's why live one is more powerful than this inactivated. Inactivated में क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रोटेक्शन करे, है ना, क्योंकि इसका 3D स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, इसको आपने ज्यादा केमिकल, तो इसीलिए ये वाला रिप्लेस करके लाइव वाले से भी ज्यादा रिप्लेस किया रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसमें वायरल प्रॉपर्टी रह जाती है ना, लाइव एटेन्यूएटेड में रिवर्ट बैक कर सकते हैं। जैसे एक बार केस हुआ था पोलियो के केस में, पोलियो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, तो जितने बच्चे ने पिया था उसमें सबको पोलियो हो गया था, उसमें वायरस ही एक्टिव हो गया था, तो फिर वो स्लॉट ही पूरा हटाया। तो कुछ महानुभाव लोग इसको साजिश बता के इंटरनेशनल और यूट्यूब पे फालतू के चैनल बना के, एक दिन हमको लगता है यूट्यूब बनाने वालों को ना फांसी की सजा होती फालतू के नेशनल न्यूज बनाते हैं उसको, है ना। तो बात समझ रहे हो, इनएक्टिविटी अभी जो रिप्लेस हुआ है वो मॉडर्न वैक्सीन में आता है। कभी ये जो कन्वेंशनल वैक्सीन की बात मैं कर रहा हूँ, किल्ड एटेन्यूएटेड, है ना,
बहुत सारे लिमिटेशन है. नॉट ऑल इन्फेक्शन कैन बी ग्रोन इन कल्चर, देयरफॉर मेनी वैक्सीन हैव नॉट बीन डेवलप्ड. Production of animal human viruses require animal cell culture, which is very expensive. The yield and rate of production of animal and human viruses in culture are quite low. Extensive safety precautions are necessary. So limitation is there. The batch of vaccine may not be killed or may not be insufficiently attenuated during the production process. So thereby introducing virulent organism into vaccine and inadvertently spreading the disease. Okay. So attenuated strain may reward a possibility that require continual testing to ensure that the re-acquisition of virulence has not occurred. Not all diseases are preventable through the use of traditional vaccine, right? So ये सारी इसकी limitation है. So जैसे फॉर एग्जाम्पल एक WHO का प्रोग्राम चला था इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनाने का, वो डेवलप हो गया, मार्केट में आ भी गया, राइट. सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्चुअली चेकिंग व्हाट इज द स्प्रेड रेट. दे आर सेलेक्टिंग द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन, है ना. So they are identifying. CDC is a part of WHO. So they are taking various strains, strain 1, strain 2, strain 3, है ना. From various places they are collecting the samples, right. So and then in the third phase they are going to select the procedure by live attenuated or recombinant or which procedure they will going to adopt. Then manufacturing and production will be the third phase. Each virus strain is produced separately and later combined to make one vaccine, right. तो ये वैक्सीन हो जाती है. एंड देन अभी कुछ दिन पहले देखा होगा तुमने, ये मैं गया था लिपिन में, पेनिसिया में. लिपिन तो पुणे में है, मैं वहां नहीं गया था, मैं पेनिसिया में गया था. आई वाज इन पेनिसिया इन बद्दी. वो अंडे में ग्रो करा रहे थे वैक्सीन, अंडे में, एग में, है ना. सो मिलियंस ऑफ स्पेशली प्रिपेयर्ड चिकन एग वर यूज्ड टू प्रोड्यूस द वैक्सीन. And for 7 months, fertilized eggs were delivered to the manufacturer. Each egg is cleared with the disinfectant spray and injected with one strain. Eggs are incubated for several days to allow the virus to multiply fast. And after the incubation, virus-loaded fluid is harvested. ये सबसे easy वाला वे था. Rather than किसी living organism को मारने से अच्छा है कि चिकन के egg में produce करना. And then purification is also easy from the egg. So virus fluid undergoes multiple purification steps and especially chemical treatment to ensure that virus is inactivated. Virus is split by the chemical disrupting the whole viruses. The virus fragment from all the strains are collected from different batches and combined upon completion of quality control. So quality control की testing होती है and then FDA testing के लिए भेज देते हैं, trials. Filling and packaging, then shipping and then vaccination. So all these are the steps. तो FDA का जब approval हो जाता है, then finally that slot is formulation is packed and then ये world wide पे recommended होती है, WHO से सीधे recommended होती है, तो ये फायदा हो जाता है. So there are various recombinant vaccine nowadays that create better, safer, reliable. Why? Because अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी आ जाते हैं. यहाँ बॉटनी जुलॉजी वाले कुछ नहीं कर सकते, बायोकेमिस्ट्री वाले कुछ नहीं कर सकते, राइट. तो बायोटेक्नोलॉजी इज वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी. शायद मैंने बायोटेक्नोलॉजी ना पढ़ी थी तो आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सो मेनी ब्रांचेस ऑफ द साइंस, राइट. सो दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. इट्स वेरी इजी. यू कैन गो फॉर सीक्वेंसिंग, ठीक है. द सीक्वेंसिंग विल गिव यू आइडिया ऑफ what is the antigenic portion. So ये है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की लिस्ट. तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में करते क्या है, इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर. क्या करते हैं हम लोग, एनी आइडिया? जीन सीक्वेंसिंग करके फाइंड आउट द एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, है ना. तो सारे जीन को लेने की जरूरत क्या है ना. After the protein sequencing,
what you can do, you can select specific gene which are responsible for the antigenicity. अब आपके लिए आसान हो गया, उतने जीन को लेके एंड यू गोइंग फॉर क्लोनिंग करा दिया, क्लोनिंग करा के देन यू कैन इजिली हार्वेस्ट लार्ज नंबर ऑफ एंटीजन। तो वो एंटीजन स्पेसिफिक क्लोन करा के बनाया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द आरडीएनए वैक्सीन। ये काफी डिजीज के अगेंस्ट में काफी सफल रहा। देखो ना, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, है ना, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, गोनोरिया, कॉलरा, एड्स, इंसेफेलाइटिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज, जेनिटल अल्सर, हाई फीवर, लिवर डैमेज, चिकन पॉक्स। आदमी को मारने के लिए कितने वायरसेस पीछे पड़े हुए हैं, एक भी गलती किया आपने, देन रेबीज, सीधे रब को प्यारे हो जाओगे। वाइब्रेशन मोड में आ जाओगे। एड्स, हाँ, एड्स होने के बाद तो फिर सारी दुनिया भूल जाओगे। ठीक है, मलेरिया हो गया तो बस मलेरिया कॉलरा एक जैसे सिम्टम आते हैं। अगर आप जाओ ना तो कॉलरा मलेरिया के एक जैसे सिम्टम आते हैं। स्लीपिंग सिकनेस चलो अब बहुत ही कम होता है। टीबी, some days back it was a very common, encephalitis गोरखपुर को इसने हिला दिया था। अभी देखो ये एक्यूट रेस्पिरेटरी, है ना, डिजीज के साथ ब्लड क्लॉटिंग वाला करेक्टर कोरोना में आ गया। ठीक है, तो बाकी जान मारने के लिए एक नहीं लाखों पैथोजेनिक एजेंट घूम रहे हैं। अभी कोरोना सबका बॉस बन के आ गया है ना, केवल मैं रहूंगा दुनिया में, तुम लोग नहीं रहोगे। ठीक है, तो अभी आते हैं सेकेंड वैक्सीन अभी प्रोसेस में है। डायरियल डिजीज, गोनोरिया, मेनिंजाइटिस, लेप्रोसी, व्होपिंग कफ, डिसेंट्री, सेप्सिस, मतलब सारी दुनिया के अगेंस्ट में मतलब एक दिन आएगा कि बंदे के पास में 1200 वैक्सीन की लिस्ट होगी। पूरे बॉडी में इंजेक्शन लगेगा, हर महीने एक वैक्सीन लगवा लो, 4000 की, 3000 की। टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, रिवर ब्लाइंडनेस, इंटरनेशनल विजन, मलेरिया, सिस्टोमाइसिस, स्लीपिंग सिकनेस, फाइलेरियासिस, कितने लगवाओगे, राइट? तो ये टिपिकल एनिमल वायरस के स्ट्रक्चर है, दैट इज द आउटर कोट। जो बात करते हैं ना कोविड में, देयर इज आउटर कोट, है ना, तो उनको बोलते हैं स्पाइक। तो ये जितनी लेयर होती है उतनी स्पाइक होती है। 3 लेयर वाला चाइना में और अमेरिका में है। ठीक है, इंडिया में 1 लेयर वाला स्पाइक। इसलिए कहते हैं कि जितना जनरेशन ये ग्रो कर रहा है उतना ही इसकी पैथोजेनिस्टिस हो रही है। तो मोदी जी ने गलत किया कि सही किया, इस पे काफी बहस हो रही है आजकल, है ना। राहुल गांधी अपना ही तर्क दे रहे हैं, ठीक है ना, तो काफी लोग उनके सपोर्ट में भी है राहुल गांधी के। तो बट वो अगर साइंटिफिकली देखो तो वो गलत किया कि सही किया, तुम लोग बताओ। अगर पहले लॉकडाउन नहीं किया होता, अब किया होता, तब ज्यादा अच्छा था कि पहले कर दिया वो अच्छा? पहले कर दिया वो अच्छा था। क्यों? क्योंकि सर वो आगे से आगे जब हो रहा है तो वैसे भी वो स्लो डाउन नहीं हो रहा है। हाँ, वो स्लो डाउन हो गया ना, एक्चुअली इसकी पैथोजेनिसिटी लूज हो गई। अगर उस टाइम पे वो स्ट्रेन 1 जो आया था 3 स्पाइक वाला, अगर वो जनरेट कर गया होता, फिर सर इंडिया में भी लाशें बिछ जानी थी। इंडिया में लाशें जगह नहीं सड़क पे होती। तो दिल्ली में देखो जो हालत है, दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट इतना भयंकर हुआ खाली केजरीवाल की लापरवाही की वजह से। अभी वहां पे लाइव दे रहा था निगम बोध घाट का, लाशें लाइन से रखी है, 10-10 घंटे लोग वेट कर रहे हैं। तो फेक भी तो दिखा सकते हैं। नहीं, दिल्ली में तो मेरे लोग रहते हैं ना, एक सोर्सेस से नहीं पता करते ना, हम तो मल्टीपल सोर्सेस से पता करते हैं, एक सोर्स से नहीं पता करते। एक्चुअल में मैंने न्यूज देख के नहीं किया था बात। एक महिला का वीडियो नहीं वायरल हुआ था,
जिसके किसी घर वाले की मतलब डेथ हो गई थी। ये सब ना ना ना, एक महिला ने अपना रियल वीडियो बना के भेजा था, उसको मैं बता रहा हूँ। न्यूज को तो मैं फेक मानता हूँ, तो गैंग वो है न्यूज हो गया, उनको जो बोला जाता है उतने दिखाते हैं ना, वो रियल नहीं दिखा सकते ना, तभी तो ये पॉपुलर हुआ व्हाट्सएप वगैरह। अगर रियल आते तो व्हाट्सएप पॉपुलर नहीं होता है ना, लोग और चैनल पे क्यों जाते। तो सी वाज टेलिंग, सी वाज इन द हॉस्पिटल एंड उसको कितना 4 लाख या 5 लाख का बिल दिया था, 4-5 दिन वेंटिलेटर पर रखने का हॉस्पिटल में। मर भी गया था, पेशेंट दूसरे को दे दिया था। फिर घाट पे जाके पता चला वो पेशेंट वो है ही नहीं है, उसके फादर थे, लड़की के फादर थे। एक लड़की थी, वो ऐसे ही कर रही थी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके फादर बीमार थे, राममनोहर लोहिया में ले गई थी, काफी 4-5 लाख रुपये मांगा भी, और इसके बाद पेशेंट ही बदल दिया है ना। निगम बांध के देते हैं ना कफन, जब वहाँ 8 घंटे वेट करने के बाद जब लाश खोली गई तो पता चला कि उसके फादर है ही नहीं। तो फिर वो दोबारा मैसेज गया, फिर 8 घंटे की वेटिंग, 8 घंटे बाद लाश आई, फिर 8 घंटे नेक्स्ट वेटिंग। तो उसने पूरा मतलब जब जला लिया तब वीडियो समरी बना के उसने बताया ये हालत है दिल्ली के। तब खलबली मची थी, तब अमित शाह ने तुरंत मीटिंग करी थी उसके बाद, केजरीवाल के हाथ से सब छीन लिया, इससे मैनेजमेंट नहीं होगा, ये तो जनता मर जाएगी। तो बात समझा करो, जो रियल चीजें आती है तो उस पर एक्शन भी बड़ा तगड़ा होता है ना। ऐसे तो छिपा दिया सारा ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक है। केजरीवाल ने तो सारा कुछ रेड जोन में भी सब कुछ खुला कर दिया ना, रेड जोन के पास में खुला कर दिया, सब कुछ खुला कर दिया, किसी की जान परवाह नहीं, सब जा रहे हैं, मंडी में जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जाओ भाई। तो प्रॉब्लम तो ये है कि अभी साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन अगर एक ट्यून में नहीं चलेंगे, किसी साइंटिस्ट ने एडवाइस किया होगा ना अभी ब्रेक लगाओ, नहीं तो जाएगा पूरा इंडिया। सो मैं मतलब what I want to conclude that don't believe on everyone, every data. 90% data are fake. First thing, right? Since you are a scientist and you know every bit of the detail, if you are not knowing, kindly discuss me before reaching on the conclusion. Blind conclusion can be very dangerous because you don't know, but many people can be our followers also. So if you are trying to forwarding the message, so आपने देखा होगा बहुत ही कम फॉरवर्ड में करता है मैसेज, लेकिन मुझे अगर थोड़ी सच्चाई लगती है बेस्ड ऑन द साइंटिफिक, तभी मैं उसको हिम्मत करता हूँ कि मैं थोड़ा शेयर करूँ। अदरवाइज आई एम नॉट बिलीविंग, क्योंकि मुझे सबका पहले स्टैंडर्ड इवेलुएट करता हूँ, जो शेयर कर रहा है उसका स्टैंडर्ड क्या है, हु इज दैट पर्सन, अरे कितनी समझ है, कितनी अकल है उसको, उसने जज भी किया कि नहीं किया। सो इन दैट वे ना कि यू कैन क्रिएट ए मास ऑफ राइट पीपल। चलो, so for disease causing virus it has been shown that purified other surface viral protein, either capsid or envelope protein, are sufficient for eliciting neutralizing antibody in robust organism. So vaccine that use a component of pathogenic organism rather than whole organism are called subunit vaccine. What is subunit vaccine? Vaccine that uses part of the pathogenic organism. Part, only part. They were called as a subunit vaccine. जरूरत क्या है पूरा वायरस इंजेक्ट करने का? So now you can see the part. What are the different part? Understanding it. तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में देखो ये क्या करते हैं कि डिजीज कॉजिंग एजेंट, जीन एक्सप्रेशन सेल्स है ना, प्रोटीन सब यूनिट को आइडेंटिफाई किया, एंड देन ओनली दैट यूनिट इज एक्सप्रेस्ड एट लार्ज स्केल, फिर इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, फिर फॉर्मुलेशन, देन वैक्सीन। इसलिए सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन अभी नाम दिया, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की जगह रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन क्या है?
disease causing agent producing toxin. So only the toxin portion is purified. है ना, बाकी सारा छोड़ देंगे. यहाँ उल्टा हो रहा है, बाकी सब में क्या कर रहे हैं, इनएक्टिवेट कर रहे हैं. जैसे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, लाइव एटनेक्टिव वैक्सीन है, वहां पैथोजेनिक एरियाज को हम डाउन कर रहे हैं. टॉक्साइड में क्या कर रहे हैं कि जो टॉक्सिन रिलीज हो रहा है ना, बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, टॉक्सिन इज रिलीज, नॉट पैथोजन डायरेक्टली. पैथोजन को नहीं कर रहे हैं कुछ भी, टॉक्सिन को प्यूरिफाई कर रहे हैं. समझ में आ रही प्रीति? यस सर. है ना, तो जो टॉक्सिन रिलीज हो रही है उसको केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिन अगर बॉडी में एज सच पहुंचेगी तो दैट विल बी डेंजरस. तो इनएक्टिवेशन करते हैं उसको, तो ये फॉर्मुलेशन करके ये ज्यादा सेफ होती है टॉक्सॉइड वाली. लेकिन ये सबको बना नहीं सकते सबके केस में, क्योंकि सबकी मल्टीप्लिकेशन के बाद ही फिर वो रिलीज होती है. तो प्रोटीन वैक्सीन इज मोस्टली seen to have a humoral response, है ना, this simplex virus. So what you can do, select this strain. So if you are infecting, they are not protected directly. You are infecting, they are not protected. ठीक है, so they are going to kill you. अभी क्या करना है, isolate their infectious portion, है ना, and then clone them. Cloned viral GD gene. Only this portion has been cloned, and this was transferred into the CHO cell line, transfected CHO cell line, transfected CHO cell line. CHO cell line is the eukaryotic human cell line. This is secreted acidic protein, purify and concentrate. फिर इसको इंजेक्ट पहले किया एंड देन इसको इन्फेक्ट कराया, एंड देन इट वाज फाउंड दैट दिस इज प्रोटेक्टेड. तो हाउ दिस इज प्रोटेक्टेड, इसका मतलब सल्फेट वैक्सीन इज इफेक्टिव, राइट, इफेक्टिव अगेंस्ट दिस वायरस. दिस वायरस नेम इज herpes simplex virus, right? Herpes simplex virus. तो ये चीजें याद रखना है. अच्छा, ये है. So what you have isolated HSB, glycoprotein D, GTG, and used to transfect CHO cells. आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि उड़ती खबर आई है 15 अगस्त के बाद कभी भी CHIR के एग्जाम होगा. ठीक है, तो इसके लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास काफी टाइम है. सर डीबीटी का तो एग्जाम जो 30 जून को कर दिया है. कर दिया आगे डेट? सर अच्छा, बस ठीक है. तो ये 15 अगस्त के बाद ही कर रहा है CHIR का. 30 जून को चलो मान लो, अभी अगर ना टले तो अच्छा ही डीबीटी. तो एकदम फुल रिवीजन के मोड में आ जाओ. बाकी अभी नया नहीं पढ़ना, कुछ भी नया पढ़े नहीं कि डेंजरस हो जाएगा, बता रहा है. कुछ भी नया ना पढ़ो. नया पढ़ोगे पुराना गायब हो जाएगा, ना ये होगा ना वो होगा. ठीक है, जितना पढ़ लिया है ये जान लो कि उतना सिलेक्शन के लिए मोर देन एनफ है. ठीक है ना, क्लास रेगुलर करते रहो, क्योंकि क्लास हमारी बंद नहीं होने वाली, क्लास हमारी कंटिन्यू चलेगी. ठीक है ना, नए बच्चे भी ज्वाइन कर जाएंगे कल से, जिन्होंने भी एडमिशन लिया है. ठीक है, बाकी सबकी फीस भी आ गई है ना, तो सबने ज्वाइन करना है कल से. ओके, repeat, everyone should join from tomorrow. और नया वो भी बन गया है गूगल क्लासरूम और नया व्हाट्सएप. ठीक है, चलो. सो देन ट्रांसफेक्टेड से, ये ट्रांसफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वायरल वेक्टर का नाम पूछते हैं कि विच वायरल वेक्टर you can use. So this is human cell line.
सो उसी तरह से बहुत सारे वैक्सीन बनाए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल फुट एंड माउथ डिजीज, FMDV एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है. So FMDV has a devastating effect on cattle and swine. The successful subunit vaccine is based on the expression of capsid viral protein. BP1 के बारे में पूछा हुआ है. BP1 फ्यूजन प्रोटीन से पूछा हुआ है. ठीक है ना. So the bacteriophage emister replicates protein in nuclei. And FMDV genome consists of 8 kb ssRNA. cDNA was made by ESRS system. cDNA based methodology है. BP fusion प्रोटीन का निकाल लिया, स्ट्रेन जीन सीक्वेंसिंग से पता कर लिया, एंड देन प्रिपेयर द सबयूनिट वैक्सीन. सबयूनिट वैक्सीन और जरूरत लगे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ठीक है. इस सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत ही खतरनाक है वायरस. एक बार हो जाता है तो फिर पूरा सर्वाइकल निकालना पड़ता है. इन दैट केस दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव. और कैटल एंड स्वाइन में भी फूट एंड माउथ डिजीज का बहुत ही खराब इफेक्ट है. पूरा उनका माउथ सड़ जाता है ना, पैर और माउथ. So peptide vaccine is another kind of protein vaccine. This is the using certain specific domain of a surface protein that can be utilized as a vaccination purpose. These domains are basically strong antigenic determinants structure that is called the epitope, and they are capable of eliciting an immune response. So this is the carrier protein, right? And in some cases, small peptides are often degraded, and therefore some poor or no immune response is generated. So when these peptides are fused with inert carrier proteins, vaccines exhibit a stronger immune response. So what is the advantage and disadvantage of subunit vaccine? Advantage using purified protein is an immunogen ensure that the preparation is stable and safe. Right, and is precisely defined and is free of extraneous protein that can initiate undesirable side effect in the host organism. Right. And what is the disadvantage? Verification of a specific protein can be costly, and in certain instances, isolated protein may not have the conformation as it does in situ. Advantage disadvantage आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा कोई बता नहीं है. This subunit vaccine is more safer than other kind of vaccines, right? So basically idea भी होता है कि they must be stable and they must be safe. कोई भी undesirable effect ना हो after the injections. ठीक है. Disadvantage यही है कि they sometimes they are very costly. Verification steps are very tough. Preparing cDNA is very tough. So all those needs kind of specific specialization, expertise. So what is the DNA vaccine? Nowadays DNA vaccine is utilized for viruses. So coronavirus के केस में भी मैंने देखा कि बहुत सारे laboratory they were preparing these DNA vaccines, right? So one or more genes encoding critical pathogen specific antigens are isolated and combined with the harmless or disabled vector for delivery by injection or incorporated into food plants for injection or modified formulation as naked DNA. So subunit antigens can also be produced by genetic engineering for direct injection. तो इसमें बहुत ही सिंपल स्टेप है, आपको दिखाता हूँ पूरे स्टेप्स. So you can see the pathogen genome sequencing कर दिया, then isolated that specific gene है ना, और specific gene, then they are modifying the expression in the host. So now they can be injected directly into the persons. DNA को directly उस DNA portion को ही inject कर दिया, along with the some vector, without vector नहीं, with some vector. जैसे यहाँ disabled vector है, vector containing genes, they are only injected. या तो modified plant में आप insert कर दो, तो वो plant खाएगा बंदा, and then that will be going to be digested and the protein will be released into the body. तो ये DNA वैक्सीन का कॉन्सेप्ट ये वेक्टर लगा के भेजना है. विदाउट वेक्टर यू कैन नॉट सेंड.
So that's why harmless or disarmed vector. तो CSIR में एक दिन पूछा था what is disarmed vector? Disarmed vector. Disarmed vector वही होते हैं जो harmless vector होते हैं. That can be used for delivery by injection or incorporated into both once injection are modified for injection or naked clearance. So subunit antigen can also be produced by genetic engineering for direct injections. Advantage of genetic immunization over conventional vaccine. Population of dangerous agent is not required since genetic immunization does not utilize any viral or bacterial strain. Right? So this is the advantage of genetic. लेकिन ये मैं खुद प्रेफर नहीं करता क्योंकि ये बड़ा खतरनाक हो सकता है. But production is inexpensive because protein does not need to be produced. तो ये फायदा है. Storage is inexpensive because DNA is stable, can be stored in very less amount of storage. So one plasmid can code various antigen and vaccine. So several plasmid can be mixed together and administered at the same time. तो इसको फ्यूचर का वैक्सीन मान रहे हैं लोग साइंटिस्ट कि ये बहुत अच्छा हो सकता है. एंड देयर आर नो ऑर्गेनिज्म attenuated organism we are using, so उनके chances भी नहीं कि they can revert back. है ना, उनके वायलेंस का होने का खतरा नहीं है. तो जो all that disadvantage that were reported earlier in other vaccination purpose, तो वो इसमें obviously खत्म हो जाएगी. ठीक है. So, but they are not problem free. There are various problems of DNA vaccine because a large animal and human transfection efficiency is very low. तो उसको करने के लिए क्या करते हैं कि suitable vector. आजकल क्या करें पॉलीमेरिक डिजाइन पॉलीमेरिक पार्टिकल बना रहे हैं जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज हो कीटानिक सरफेस हो. That bind the plasmid DNA have been used to deliver foreign DNA to animal cells. So biodistrict system or direct injection is used to introduce this DNA macroparticle into animals. The plasmid DNA carrying an antigen under the control of animal virus. So biodistrict system and direct injection these. What is attenuated vaccine? Attenuated vaccine traditionally used non-pathogenic bacteria or viruses related to their pathogenic counterparts. So genetic manipulation can be done to produce these attenuated vaccine by deleting certain genes that causes the pathogens. For example, in preparation of Vibrio cholera vaccine, so there is a endotoxin gene for A1 peptide. So that is basically causative agent of cholera, and that can be deleted. So resultant is that bacteria is non-pathogenic, and now that can be good immunoprotectant except some side effects. So as a strategy adopt करके they are creating some vaccine. So what are the strategy for deleting part of the cholera vaccine, the peptide DNA sequence? So whatever the A peptide is there, that can be digested specifically with restriction digestion. For example, you can see this picture. I can zoom in this picture. And this is plasmid A1 peptide is there. So they have the two restriction digestion portion, CLA1 and XBA1. CLA1, XBA1. Now you can see XBA1 linked to T4 DNA ligands. So deleted A1 peptide DNA sequence conjugation and then chromosomal addition of this G. ये delete हो गया. अब इसका खतरा ही खत्म हो गया. अब इसको क्या कर सकते हैं, बस आपको वाइब्रियो कॉलरा में डालना है ना, सो दैट अब ये नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन बन जाए. इस नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन से क्लोन करके यू कैन आइसोलेट लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए विद डिलीटेड A1 peptide DNA sequence. I hope this is clear to you. And based on the tetracycline marker gene, you can isolate. What is a vector vaccine? The vector means they may be small, they may be very large. So, or sometimes viruses against viruses, you have to need a large vector. So,
mostly viruses are also utilized as a vector. So vaccinia virus is one such dynamic virus that has been used for eradication of smallpox globally. उसमें आइडिया ये है कि जो भी ऐसे वायरसेस हैं जो हार्मलेस बैक्टीरियल स्ट्रेन को कैरी कर सके, राइट, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड to elicit neutralizing antibody against pathogenic strains. So what is the property of vaccinia virus? Vaccinia virus basically very small DNA genome, 187 kb maybe, and replicate in cytoplasm, not in nucleus, which means replicating in single broad host and stable for year of life license. So this virus genome is very large and like unique restriction sites. So there is no danger of restriction digestion, and they can undergo homologous recombination. So what is the strategy for integration of antigen gene into vaccinia virus DNA? DNA sequencing coding for a specific gene inserted into plasmid vector immediately downstream of a cloned vaccinia virus promoter and in the middle of non-essential vaccine virus gene such as a gene for the enzyme thymidine kinase. बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, जैसे अंदर मार्कर पहले देख लेंगे व्हाट मार्कर आते हैं, बिकॉज सम कंटेन्स थायमिडिन काइनेस मार्कर. तो अगर आप उस जगह पे कोई चीज आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो दैट विल बी डिस्टर्ब. तो दैट इज आल्सो गुड फॉर स्क्रीनिंग पर्पज है ना. तो स्क्रीनिंग पर्पज के लिए क्या करते हैं कि सिलेक्शन के लिए, प्रॉपर सिलेक्शन के लिए ओनली, जैसे वैक्सीनिया वायरस में एक मार्कर है थायमिडिन काइनेस, दैट इज नॉन एसेंशियल. ये नॉन एसेंशियल पोर्शन है, दैट कैन बी रिमूव्ड आल्सो, एंड इन दैट प्लेस यू कैन इंजेक्ट योर ओन चॉइस ऑफ जीन, क्योंकि वो साइज सेम होनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है ना. तो जितना हटाओगे उतना ही जोड़ सकते हो, ये रूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का. तो एनी जीन यू कैन प्रोड्यूस, एंड उसके बाद जब आप होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन कराओगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव ए रिकॉम्बिनेंट, जैसे ये डायग्राम आप देख सकते हैं. So this is a plasmid clone antigen gene vaccinia virus promoter, vaccinia virus thymidine kinase. अभी दोनों एंड में देखो thymidine kinase है, ठीक है ना. इसको हमें क्या करना है, हमें रिमूव करना है, नॉन एसेंशियल. इसको रिमूव करने के लिए we can allow the insertion of क्लोन एंटीजन. क्लोन पोर्शन हमारा, क्लोन पोर्शन मतलब वैक्सीनिया वायरस के दोनों तरफ जो थायमिडिन काइनेस था उसके मेजर पोर्शन के बीच में हमने ये क्लोन एंटीजन डाला है. अब इसको एक्चुअल वैक्सीनिया वायरस डीएनए से होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन करा है. तो अब ये हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया जिसमें थायमिडिन काइनेस दोनों एंड पे हैं अलोंग विद आवर डिजायर्ड क्लोन एंटीजन जीन, दोनों है. क्लियर? So bacteria is antigen delivery system, antigen gene, attenuated bacteria, antigenic protein, expression bacteria, vaccine out. So what is the application of vector vaccines? Number of antigen gene have been inserted into vaccine virus genome. For example, rabies virus C protein, hepatitis B surface antigen, HBsA, इसको बोलते हैं HBsA, ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म में दे सकते हैं HBsA. Hepatitis B surface antigen. Influenza virus NPHA. Recombinant vaccinia virus vaccine for rabies is able to receive neutralizing antibody in foxes, which is major carrier of the disease. तो जो कैरियर है उसको भी अगर वैक्सीनेशन दे देते हैं तो काफी फर्क पड़ता है. क्यों? क्योंकि वो एंटीबॉडीज है, उनको जाकर न्यूट्रलाइज कर देगी. तो अच्छा है कि वेक्टर को ही न्यूट्रलाइज कर दें. Such attenuated salmonella strain have been used as a antigen delivery system to provide host immunity against cholera and Helicobacter pylori. The summary of recombinant vaccine: pathogen, unique antigen, pathogen genome, isolated for gene coding for asymmetric antigen, non-pathogenic bacterial vector, recombinant bacterial plasmid DNA, replication, translation, injection into persons. तो ये बैक्टीरियल वेक्टर लिया था, ये नॉन पैथोजेनिक वायरल वेक्टर लिया. सो रिकॉम्बिनेंट वायरल जीनोम, इंजेक्शन इनटू वैक्सीन रेसिपिएंट, ह्यूमन सेल लाइन,
and then transfection by translation, surface expression pathogen antigen, viral antigen plus host immunity serum, and then standard host immunity against pathogen. क्लियर? इम्यून सिस्टम को हम डिवाइड कर सकते हैं इनेट और एडॉप्टिव, है ना? तो नॉन स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट इम्यूनल एंड एडॉप्टिव सेलुलर कंपोनेंट इंटरेक्शन बिटवीन द टू सिस्टम। तो इम्यूनिटी उसी के आधार पर है। इनेट इम्यूनिटी हमें पता ही क्या करता है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या करता है, राइट? सो इफ यू आर गोइंग फॉर वैक्सीनेशन, then you should know all these systems by which the vaccine is prepared. This is the fundamental aspect of vaccination जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। So type of immunity, two mechanisms by which immunization works: passive immunization and active immunization, right? So induction of adaptive immune system, active immunization. Passive immunization, they are protective antibodies already prepared and then they are injected. That's why they are not having any kind of no generation of immunological memory. Generation नहीं होगा, इसमें always memory will form. That's why this is called active. So principle of vaccination type passive immunization means natural, either milk mother के through जाता है जो, ठीक है ना, या सीरम में होगा, मैटरनल सीरम टू चाइल्ड, और आर्टिफिशियल सीरम, राइट, दैट कैन बी इंजेक्टेड इनटू अदर पर्सन, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अब ये पढ़ाया था अभी, नेचुरल एक इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कोरोना का हो रहा है सबको, तो एक व्हाट्सएप पे चल पड़ा था कि एक बार सबको जब कोरोना हो जाएगा तो कोई बीमार नहीं रहेगा, है ना? ये काइंड ऑफ नेचुरल इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन तो सबको होना है, ये ध्यान रखना है कि ना हो, सीवियर ना हो, हॉस्पिटल नहीं जाना है, रेड जोन में नहीं जाना है, इवन नॉन सिम्टोमेटिक आजकल चल पड़ा है कि बहुत लोगों को है, हमें पता ही नहीं लगता, सब्जी वाले को है, जिससे भी हम जाते हैं हमें लगता नहीं है, मैं भी जाता हूँ मुझे भी डर लगता है, मैं क्या करूँ, जाना ही। आर्टिफिशियल इन्फेक्शन, एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म लाइफ, इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म डेड, क्लोन जीन, ये सारा बता दिया, प्यूरिफाइड मटेरियल, मॉलिक्यूल, सिंथेटिक पेप्टाइड, ये आर्टिफिशियल रेफर्स टू स्टेप इन्वॉल्व। तो सेम है ना, कौन सा? ये भी नेचुरली, वो भी नेचुरली, एक्टिव पैसिव। नहीं, ये तो इन्फेक्शन हुआ ना, नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, ये नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू हुआ, नहीं समझे? आपको इन्फेक्शन हुआ और आप बीमार नहीं पड़े, ठीक, या एक बार बीमार पड़े, ये भी तो क्वेश्चन आजकल व्हाट्सएप पे चल रहा है, एक बार जिसको कोरोना हो गया, क्या उसको दोबारा कोरोना होगा कि नहीं होगा? हमने देखा होगा आजकल 2-3 दिन से ये फ्लैश चल रहा है, आजकल न्यूज वालों को पता नहीं लग रहा है कि ये चीज होगा कि नहीं, इसका आंसर क्या है? बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस। एक बार जिसको कोरोना होके ठीक हो गया, इन्फेक्शन लग सकता है उसको, कोई ये नहीं कि इन्फेक्शन नहीं लगेगा, बट वो ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल मीन से, आर्टिफिशियल मीन जिसको बोल रहे हैं वैक्सीनेशन, उससे हम डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझे, सीरम थेरेपी वही तो बात हो रही थी, सीरम थेरेपी, नहीं समझे? उसके सीरम में तो आ गया ना मेमोरी सेल, सीरम में मेमोरी सेल आ गया, ये तो पर्पस था। फर्स्ट टाइम नो मेमोरी सेल, सेकेंड टाइम मेमोरी सेल, थर्ड टाइम स्ट्रॉन्ग मेमोरी सेल। जितनी बार आओगे उतनी बार, एक बार इसीलिए कहा जा रहा है कि सारा इंडिया को जब तक इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा, नो वन इज सेफ। इन्फेक्शन तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया ना, कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब अब जैसे जितने लोगों का चेकिंग हो रहा है, राइट, चेकिंग का टूल भी तो डाउटफुल है तो थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं भाई, जिसको बुखार है उसको कोरोना डिक्लेयर कर दे रहा है कि नहीं? फिर उसकी सैंपल ले रहे हैं नाक से,
फिर वो भेज रहे हैं तो एक हफ्ते में रिपोर्ट आ रही है, तब तक उसको क्वारंटाइन कर दे रहे हैं। पता चला कि इसमें कितने लड़कों ने सुसाइड कर लिया। कोरोना पॉजिटिव के शक में आगरा में एक लड़का था, उसको डिटेन कर लिया गया था, मतलब ऐसे क्वारंटाइन सेंटर में दे दिया, जान दे दिया, सुसाइड कर लिया। इतना टेंशन में आ गया, 2 दिन सोया नहीं, छत पे चढ़ के जान दे दिया, है ना। प्रॉब्लम तो ये है ना, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई इसलिए अगर विश्वास करोगे हर चीज पे, जान से जाओगे, ठीक है ना। इवन तुम्हारे विषय में भी कोई बोल रहा है, तुम सुन रहे हो, तो झूठ ही मानो, 99% झूठ है। अगर तुम सेफ तभी होगे जब तुम ये मान के चलोगे पूरे वर्ल्ड में 99% झूठ है, फेक वर्ड है, आप ऑटोमेटिकली यू आर इम्यून टू, क्योंकि जैसे बिलीव किया वैसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आपकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग है, यू कैन नॉट कंट्रोल। तो मैकेनिज्म वैक्सीनेशन बता ही दिया, prepared antibody directly surface protein of organism can be given to the host। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ बता ही दिया कैसे प्रिपेयर करते हैं। एडजुवेंट इंपॉर्टेंट है, एडजुवेंट को पढ़ा भी दिया था ना, एलम एंटीजन जैसे ना दे दिया तो वैक्सीन की क्लम्प बन गई, एलम such that antigen is released slowly, take time, ना, give more time for memory cell to form, इसको कहते हैं एडजुवेंट वैक्सीन। ये इंपॉर्टेंट है, बुक में बड़ा कम मिलता है आपको, ठीक है। अंडे में कौन सी बनाई गई वैक्सीन पूछ सकता है, तो एक में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अभी तक बनाई गई है, ठीक है। सिंपल बैक्टीरियल कल्चर से कॉलेरा, राइट, वैक्सीनिया कॉफ फॉर स्मॉल पॉक्स, रैबिट ब्रेन फॉर रेबीज। ये कन्वेंशनल तरीके थे, अभी तो सारा चेंज हो गया। न्यू जनरेशन वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, वायलेंट जीन are deleted and organism is still able to stimulate immune response. Live non-pathogenic strains can carry antigenic determinant from pathogenic strain and can carry the, when the agent cannot maintain in culture, gene or protein for antigen determinant can be cloned and exposed in alternative host. Recombinant vaccine 4 तरह के हो सकते हैं, सबयूनिट वैक्सीन, पेप्टाइड वैक्सीन, जेनेटिक इम्यूनाइजेशन, एटेन्यूएटेड वैक्सीन, वेक्टर वैक्सीन एंड बैक्टीरियल एंटीजन डिलीवरी सिस्टम, घोष डरस, ये सारा कुछ पढ़ा सकते हैं। ये है उनका टाइमलाइन, नॉन लिविंग वैक्सीन एंड देयर अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ ऑलबिलिटी। अभी ये सारा लेवल हो गया है, ये पुराना डेटा है, ठीक है। हर्पीस सिम्प्लेक्स का कौन सा पार्ट लेते हैं, ये सारा पूछ सकता है आपसे। हर्पीस सिम्प्लेक्स का ग्लाइकोप्रोटीन वो लेते हैं, ओ, ग्लाइकोप्रोटीन ओ, ओ ओ ओ ऐसे याद करो। हर्पीस सिम्प्लेक्स का क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन ओ। फुट एंड माउथ डिजीज का BP1, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, ये ऑल दीज आर रिप्लाइज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सबयूनिट वैक्सीन। Glycoprotein, subunit vaccine, antibodies usually bind to surface protein of pathogen or protein generated after destruction of pathogen. Binding of antibodies to these protein will stimulate an immune response. These therefore protein can be used to stimulate an immune response. ठीक, BCG vaccine, BCG vaccine बन गई यम बोविस स्ट्रेन से। ये कैरियर प्रोटीन एंड देन देयर एंटीजेनिक पोर्शन, डोमेन पोर्शन, है ना, इनको फिर मिक्स करके एंड देन देयर आर डिलीवरी, फ्यूजन प्रोटीन बना देते हैं। मतलब एक प्रोटीन तो कैरियर की हो गई एंड अदर प्रोटीन इज डोमेन, फाइनली दे आर मेकिंग द फ्यूजन प्रोटीन ऑफ कैरियर प्लस वैक्सीन पेप्टाइड, ठीक है बच्चों। Attenuated vaccine after live vaccine are more effective than a killed vaccine. Vaccine against, for example, cholera. Cholera caused by infection with Vibrio cholera and transmitted through contaminated water
इसमें क्या होती है, देयर इज एंटेरोटॉक्सिन A1 subunit and 5B subunit that causes the disease. Presently, the cholera vaccine consists of phenol-Q, cholera, it only lasts 3 to 6 months. So, live vaccine is more effective than the dead. ये बता ही दिया आपको, वेक्टर वैक्सीन सारा बता दिया, पोर्शन खाली याद रखना, बैक्टीरियल एंटीजन डिलीवरी सिस्टम बता दिया, एंटीजन जीन बैक्टीरियम, एंटीजन प्रोटीन मेडन बैक्टीरिया से वैक्सीन, ठीक है। ये है एग्जांपल्स। एंटीटॉक्सिन के लिए कौन सी बनाई गई, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन बॉकेबेलजम। सभी यूनिट वैक्सीन बनाई गई है, ये लिस्ट याद रखना हो सकता है, एचपीवी, ईसीवी, है ना, जीटीपी, आईपीवी, एचआईवी, लाइव एटेन्यूएटेड अगेंस्ट बीसीजी, एमएमआर। एमएमआर अभी देखो पंजाब में बहुत तेज चलता है, काफी बच्चों को लग रहा था, बच्चों को ही क्यों कर देना, रोटा वायरस, ये मेरे तीनों लगाया मेरे बच्चों को, ठीक है ना। तो इम्यूनोग्लोबुलिन, बैसिला जोस्टर, हार्पिस, टेटनस, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी आ रही, जो इसका मैंने डिस्कशन किया था, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस इन चिल्ड्रन। तो उसका नाम लीजिए पहली बीजुमैब, राइट, पहली बीजुमैब। तो ह्यूमन सोर्स से जो पूल किया गया, एंटीबॉडी प्रिपरेशन, टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, टीआईजी, एचआरआईजी, ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, बैसिलर जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन, ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन। तो लाइव वैक्सीन एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बताइए, डिसएडवांटेज ज्यादा है, एडवांटेज कम है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन किसके अगेंस्ट बनाए गए, डिप्थीरिया, एचआईवी पॉलीसैकेराइड, राइट, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, हेपेटाइटिस, इसके सेल्फर डिजीज, इसके अगेंस्ट में बनाई गई इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ये याद रखना। एंड सम आर पॉलीसैकेराइड, जैसे एचआईवी के अगेंस्ट में। ये भी मेन भी इज ए काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, है ना, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। कॉन्जुगेट, सो कॉन्जुगेट प्रोटीन बनाते हैं यूजिंग देयर सुगर मॉलिक्यूल, है ना, कॉन्जुगेशन। तो पॉलीसैकेराइड कोट इज आल्सो यूज्ड फॉर immunization. Polysaccharide vaccine are poorly immunogenic in children under 2 years old and do not stimulate long-term memory. The conjugate vaccine have enabled us to effectively protect against many diseases. जैसे ये सारे हैं, Neisseria, Streptococcus, influenza, Neisseria, Haemophilus। ये HIV कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाया है, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के अगेंस्ट में। मेनिंजोकोकल वैक्सीन भी चली है, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, शुगर बेस्ड वैक्सीन है, कंबाइंड वैक्सीन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एमएमआर रोटावायरस इन्फ्लुएंजा बहुत ही वीक इन द वायरस, इनएक्टिवेट करके जो बनाया गया पोलियो एंड इन्फ्लुएंजा। पार्ट वायरस को बनाया गया हेपेटाइटिस बी, एचपीवी, एंड डिप्थीरिया इज पार्ट ऑफ बैक्टीरिया, है ना। जीनोम बेस्ड या एंटीजेनिक यूटिलाइज करके बनाया गया, दैट इज द यूजिंग द रिवर्स वैक्सीनोलॉजी टेक्निक, है ना, दैट इज कॉल्ड द मेन वे। तो रिवर्स वैक्सीनोलॉजी क्या करते हैं, एपिटोप प्रोटेक्शन करते हैं, देन वैक्सीन। So adjuvant में aluminum salt, preservative में thimerosal, additive में gelatin, and some residual inactivating agents are formaldehyde, neomycin, streptomycin, polymyxin भी influenza and vaccines। ठीक, ये सारा खत्म होगा। ट्रायल्स देते हैं वैक्सीन का, फेज 1 स्मॉल स्केल टू एडल्ट, फेज 2 पॉपुलेशन स्पेसिफिक, फेज 3
100 to 1000 पार्टिसिपेंट फेज 4 वैक्सीन है रिपोर्ट। ठीक है, तो जितना संख्या बढ़ाते जाएंगे उतना फीस बढ़ता जाएगा। Many precautions are there that should be taken। सबको वैक्सीन सब तरह की नहीं दी जाती। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं देते हैं, राइट। और बहुत सारे केसेस है प्रेग्नेंट वुमेन इन्फेंट्स को बिल्कुल नहीं देते। और टेस्टिंग बहुत जरूरी है। जैसे MMR के केस में बहुत प्रॉब्लम आई थी, बहुत सारे बच्चों की ना बहुत ही सीवियर कंडीशन हो गई थी आफ्टर वैक्सीनेशन। तो उनको एनाफाइलेक्टिक्स ये देखा भी शॉक लगती है देने के बाद, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पहले थोड़ा सा टेस्टिंग। लाइव वैक्सीन के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी है MMR वैक्सीन, ठीक है ना। लोकल रिएक्शन बहुत होने के चांसेस है ना, ध्यान रखना है कब देना है। ठीक है बच्चों। Yes, sir. Almost this is covered. The question you can ask. मसला रिसर्च आर्टिकल की स्टडी उठा लिया था मैंने कहा अगर फ्यूचर में कभी काम आएगी तो लेटेस्ट अभी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो चलो कल से क्लास करना ज्वाइन। विल स्टार्ट द क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, बायोकेमिस्ट्री थोड़ी मजबूत भी हो जाएगी, है ना। पीएच बफर ये सारा कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पोर्शन कवर नहीं हुआ है और आपके लिए अच्छा करेगा। ठीक है, एक रिवीजन होता जाएगा, बाकी उठा लो रिवीजन धुआंधार, है ना, सारा पीछे का करो तेजी से। चलो बाय बाय। प्रोटीन से स्टार्ट होगा ना? नहीं, बायोकेमिस्ट्री से। हाँ, प्रोटीन नहीं डायरेक्टली, पहले पीएच बफर कैलकुलेशन, है ना, फिर एंजाइम से कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, एंजाइम से याद है पूरा इनहिबिटर वगैरह। वो प्रोटीन पे तो नॉर्मल हो गया, प्रोटीन का तो लोड अपलोड कर दिया मैंने, है ना। जैसे वो वही है, वीडियोस में थोड़ा ज्यादा चाहिए नहीं। ठीक है, चलो।